Assalamu alaikum class Hifz. How are you all? I hope and pray that all of you are fine and doing great at home. So as you know that today is 26th of April 2021 and the day is Monday. So on Mondays we study English subject. Here I am here for you to explain forms of verbs, but before that let's go through what are words. You know that you should know. You are not I hope that you are now able to tell everyone that what are verbs. Verbs are the words which tells about the action that is taking place or that will take place or that has taken place. Okay, वो काम जो कि हो रहा हो चुका होगा, बस काम को आप ध्यान में रखेंगे. द वर्ड विच शोज एन एक्शन is called a verb. So just like a punctuation, जो punctuation जो हमने लास्ट में पढ़ा, जब हम कहते हैं कि हम punctuation marks लगा के बताते हैं कंडीशन क्या है, रुकना है, पॉज लेना है, चलना है, शॉक्ड इंसान शॉक्ड है या हैप्पी है या फिर कंपाउंड वर्ड है, क्या है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं punctuation words. जस्ट लाइक दैट टू टेल द सिचुएशन दैट ये अभी की बात हो रही है, ये आने वाले कल की बात हो रही है, गुजर चुके हुए कल की बात हो रही है, किस टाइम पीरियड की बात हो रही है. तो दैट इज़ वाई वी यूज़ फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स. आप देखिए वर्ब एज इट इज़ यूज़ नहीं होगा हर जगह पे, इसकी कुछ फॉर्म्स हैं जो कि तब्दील होती हैं, राइट. So there are three forms of verb here: first form, second form, and as well as third form. There is one more form that is called ing form, which we are not discussing it today. Okay, everyone. So let's see. First form of verb is eat. इसी verb की second form है ate, and then we have eaten. So anybody of you know how and where to use these forms? So let's have an example of eat here. So here are the examples, some of the examples of the sentences using first form of verbs, right? So first we have the eat here, and here we have used eat in the present tense, right? So आपने ये याद रखना है कि सबसे पहले बेसिक जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है बेस फॉर्म, उसी को देखते हुए सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म चेंज होती है डिफरेंट जगह पर, ठीक है. सो फर्स्ट वन इज़ ईट. आई लव टू ईट एन एप्पल, यानी कि मुझे एप्पल खाना अच्छा लगता है. आई लव इट. सायरा ईट्स वेरी स्लोली. सायरा बहुत स्लोली यानी कि बहुत आहिस्ता से खाती है, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता खाती है. So these two are the examples where the first form, where we are using first form of verb in the present tense. But do you know it can also be used in a future tense with will. फ्यूचर में will लगाकर हम बताते हैं कि ये जो टेंस है ये फ्यूचर टेंस है, लेकिन हमेशा याद रखेंगे कि फ्यूचर टेंस के साथ, फ्यूचर टेंस में will के साथ we will always and always use first form of like they will eat fish tomorrow. वो कल फिश यानी कि मछली खाएंगे, यानी कि फ्यूचर में खाएंगे. अहमद एंड ताहिर विल ईट देयर मील टुगेदर. अहमद और ताहिर साथ में अपना खाना खाएंगे, यानी कि ये भी फ्यूचर टेंस है. तो देयर आर टू कंडीशंस इन विच द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूजिंग ईट एंड eat that has been used in present tense, and the eat that has been used in the future tense. So back to this chart. Here I am giving you a task to use go in two of that condition, यानी कि आपने दो sentences बना के दिखाने हैं मुझे कॉपी के अंदर, which will tell about the first form of verb and the present tense, right? present tense के बारे में go को use करते हुए बनाने. इसी तरीके से आपने दो सेंटेंसेस फ्यूचर टेंस को यूज़ करते हुए बनाने हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गो के. नाउ मूविंग ऑन टू आवर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब. नाउ लुक एट here are the examples of verbs using second form of verb. We have already made sentences and we have already discussed where the first form of verb of the word eat is used. There are two conditions where that is used. Now we are using
द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज़ एट, ईट की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब एट कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमेशा एट पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ करेंगे. कहाँ यूज़ करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस. ओके, फर्स्ट सेंटेंस इज आई एट एन एप्पल. I ate an apple. That means, what does that means? कि मैंने एप्पल खाया था. हो गया पास. था यानी कि गुजर चुका है वो टाइम जब आपने खाया, जब इसने खाया. तो it is used as a simple past, in a simple past tense sentence. Okay. Now our second sentence is they ate late at night. उन्होंने लेट खाना खाया था. कब? रात को. यानी कि ये भी था पर चला गया, यानी कि पास्ट हो गया है, ये वक्त गुजर चुका है. ठीक है. शाजिया एट नूडल्स येस्टरडे. शाजिया ने येस्टरडे यानी कि कल नूडल्स खाए थे. ये भी था और थे पर चला गया है. दैट मीन्स दैट हियर द वर्ब ईट विल यूज्ड, ये हम डिस्कस कर चुके हैं. इसकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विल बी यूज्ड इन ओनली सिंपल पास्ट टेंस. जब हम किसी पास्ट टेंस के बारे में कोई सेंटेंस लिख रहे होंगे तो ये इन कंडीशंस में इस्तेमाल होगा. जब हम सिंपल पास्ट टेंस का, यानी कि हम बस सिर्फ सिंपली बता रहे होंगे ये हुआ था, मैं करता हूँ, सॉरी ये हुआ था, मैं करता हूँ, मैं क्या काम करता हूँ, कल क्या हुआ था, मतलब था वाले सेंटेंसेस में. राइट. नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू गिव यू अ टास्क कि अब आपने जो मैंने अभी इससे पहले आपको सेंटेंसेस बना के दिखाए सिंपल पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होने के, तो आप मैंने आपको एट का ईट एट ईटन में से मैंने ईट और एट का बना दिया है. नाउ यू विल प्रैक्टिस एट होम एंड यू विल मेक सेंटेंसेस ऑफ वेंट. गो का बना चुके होंगे तो आप वेंट का बनाएंगे खुद से और अपनी कॉपी में लिखेंगे. राइट. So I'm moving on to third form of verb where it will use, I will tell you in a while. So basically third form of verb can be used in three different situations. Present perfect and present perfect, past perfect and future perfect tenses में ये use होगा. कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे. जब इंशाल्लाह मैं आपको ये परफेक्ट टेंसेस स्टार्ट करवाऊँगी तो हम उसे डिटेल में पढ़ेंगे. बट फॉर नाउ आई हैव सम एग्जांपल्स फॉर यू सो दैट यू कैन टेक सम नोट्स फ्रॉम इट. ओके. ईटन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब किसकी है? ईट एट ईटन. तो ईटन कैसे यूज़ हो सकता है? आई हैव ईटन माई लंच. के मैंने खाना खाया है. ठीक है. आई हैव ईटन माई लंच. मैंने खाना खा लिया है. ठीक है. इन पास्ट परफेक्ट वी विल से दे हैड ईटन द होल केक. ठीक है. उन्होंने पूरा केक खा लिया. ओके. सो दे हैड ईटन द होल केक. वो पूरा केक खा चुके थे. राइट. क्योंकि ये पास्ट आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में ये इस्तेमाल हुआ है ईटन वर्ड, जो कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है. शी विल हैव ईटन द लंच. शी विल हैव ईटन द लंच. वो खाना खा चुकी होगी. तो तीन कंडीशंस हैं. पहली, खाना खा लिया है, खा चुके थे, खा चुकी होगी, यानी कि है, थे, होगी. जो काम हो गया है, हो चुका था और हो चुका होगा, यानी कि तीन कंडीशंस में आपका ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रहा है. नाउ फॉर द प्रैक्टिस यू कैन यूज़ गॉन. इसी गॉन को आपने इन्हीं तीन सिचुएशंस में इस्तेमाल करना है अपनी कॉपी में. गो, वेंट, गॉन के सेंटेंसेस विद सिचुएशंस आपने बनाने हैं. नाउ टेक आउट योर
So in your notebook, you have to mention the date and the day at the top. Write the recorded lesson over here and make the list of first, second and third form of verb. Here are some verbs. Okay, all you have to do is you have to copy down and learn them by heart. They are some of the forms. I will give you more once we will get back to our physical classes. So here we have go, went, gone, sit, sat, sat, take, took, taken, get, got, gotten, fell, fall, fallen, eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, keep, sleep, slept, slept, run, ran, run, give, gave, given, write, wrote, written, know, due, known. So here are some verbs. बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है. प्रेजेंट जो हमने जिस जिस सिचुएशन में इनको यूज़ किया है, आपने एक एक एग्जांपल आपने लिखनी है. उस ईट की मैंने आपको ईट की बताई है और आपको गो, वेंट, गॉन की बनानी है. यहाँ पर यू विल मैंशन द डेट एंड द डे एट द टॉप. राइट द रिकॉर्डेड लेसन ओवर हियर एंड मेक द सेंटेंसेस यूजिंग एवरी सिचुएशन. ओके. That's all for today. We will meet you in the next lecture. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.